Last lecture we have discussed still about the importance of material technology. Then after the from Stone Age to the Space Age or digital age, and after what is the importance of material technology. Then after the classification of different engineering materials from metal to non-metallic and plastic and so on. Then after we have discussed about the mechanical property. So in this lecture, we start about the thermal property. So first we list out the various thermal properties like thermal conductivity, specific heat, thermal expansion, thermal fatigue, melting point, thermal diffusivity, fouling, and thermal shock. So these all eight are the thermal property we have to study in this subject. So let's see one by one. So first one is thermal property is thermal conductivity. So what is thermal conductivity? It is the property of material due to that heat can transfer easily across the material. So thermal conductivity means કે કોઈ મટીરિયલ ને આપણે હીટ આપીએ છીએ અને એ હીટ જે છે એ વેસલ ની અંદર ધારો કે ગરમ પાણી કરવા મૂક્યું છે તો એ હીટ જે છે બર્નર માંથી જે છે તપેલીની સરફેસ માંથી થઈને પાણી સુધી જે ટ્રાન્સફર થાય છે વોટર જે છે એ હીટ ગેઇન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે તો અહીંયા જે છે કે મટીરિયલ માંથી હીટ જે છે એ બીજી તરફ જે છે ટ્રાન્સફર થયેલે છે અને એ ઇઝીલી થાય છે ફ્રોમ ધી મટીરિયલ તો એને થર્મલ કંડક્ટિવિટી તરીકે ડિફાઇન કરી શકાય આપણે કન્સિડર કરીએ કે ધારો કે એક રોડ છે ને એને આપણે ફર્નેસ ની અંદર જે છે જે બીજી જે ફર્નેસ એની અંદરથી આપણે રાખીએ છીએ તો જેવી હીટ પકડશે તો એના બીજા એન્ડ પર જે છે આપણને હીટ જે છે અનુભવ થવાની સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો ધીસ ઇઝ થર્મલ કંડક્ટિવિટી તો આ થર્મલ કંડક્ટિવિટી જે છે એને ડિફરન્ટ ટર્મની અંદર પણ ડિફાઇન કરીએ છીએ અને ઘણી વખત એને કોએફિશિયન્ટ ઓફ થર્મલ કંડક્ટિવિટી અથવા સ્પેસિફિક થર્મલ કંડક્ટિવિટી તરીકે પણ એને ડિફાઇન કરવામાં આવે છે તો એ કેવી રીતે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે એ સમજી લઈએ કે મટીરિયલ ઇઝ હીટ એનર્જી ટ્રાન્સફર ડ્યુરિંગ ધી 1 સેકન્ડ at 1 meter thick slab of 1 square meter area and 1 Kelvin or centigrade temperature difference. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક રોડ લીધો આ રોડ જે છે એને હીટ સપ્લાય કરતા 1 સેકન્ડની અંદર ધારો કે અરાઉન્ડ 1 મીટર અથવા જેની થિકનેસની સ્લેબ જે છે એ અથવા 1 સ્ક્વેર મીટર એરિયાની અંદર જો એના ટેમ્પરેચરની અંદર 1 ડિગ્રી જેટલું પણ અથવા 1 કેલ્વિન જેટલું પણ ટેમ્પરેચરની અંદર જો ડિફરન્સ આવે તો એ મટીરિયલની જે છે કંડક્ટિવિટી તરીકે મેઝર કરી શકાય હવે એ સંભાવ ઘણા મટીરિયલમાં વધારે પણ મીન્સ કે ક્વિક રિસ્પોન્સ પણ આપે અમુકમાં વાર પણ લાગે તો દરેક મટીરિયલની જે છે થર્મલ કંડક્ટિવિટી જે છે અલગ અલગ હોય છે અને જનરલી એને જે યુનિટ જે છે એ આ રીતે મેઝર થાય છે W/m/K વેર આ જે હીટ ટ્રાન્સફર જે થાય કોઈ પણ મટીરિયલ જે છે એની અંદર આ જે હીટ ટ્રાન્સફર જે થાય એ મેઇનલી બે રીતે થશે કોઈ પણ મટીરિયલની અંદર એમાં ફર્સ્ટ છે કે બાય ઇલેક્ટ્રિક વાઇબ્રેશન ઓફ એટમ એન્ડ મોલેક્યુલ જે રોડ જે છે એની અંદર રહેલા એટમ જે છે એ ફર્સ્ટ એટમ જે એકદમ બર્નરની નજીક જે છે ફ્લેમ પાસે એ જે હીટ પકડશે એ રિલીઝ કરશે એની નેક્સ્ટ એટમમાં એ ફરીથી હીટ પકડશે એ રિલીઝ કરશે નેક્સ્ટ એટમની અંદર તો એટમ ટુ એટમ અને મોલિક્યુલ ટુ મોલિક્યુલ જે છે હીટ છે એક વન એટમ થી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધી રોડના એટમ સુધી એ ટ્રાન્સફર થશે અને સેકન્ડ જે છે કે બાય ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન કે જે પોઝિટિવ ચાર્જીસ જે હોય એ જે છે એ હીટ પકડશે અને પછી એ રિલીઝ કરશે ઘણી વખત આપણે પાણી ગરમ કરવા મૂકીએ તો ઇનિશિયલ સ્ટેજની અંદર જેવો મૂક્યો ને એના 1-2 મિનિટ પછી કદાચ મેઝર કરીએ તો બોટમ સરફેસની અંદર જે વોટર જે છે વધારે હીટ હશે અને હજુ ટોપ સરફેસ પર હજુ જે છે એટલી હીટ નહીં હોય અને ધીરે ધીરે એ ઇલેક્ટ્રોનની ફોર્મની અંદર નીચેનું પાણી ગરમ થઈને ઉપરની તરફ આવશે અને ઉપરનું જે હોટ વોટર જે છે ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શન હશે તો એ રીતે એ મૂવમેન્ટ કરશે ઓકે તો થર્મલ કંડક્ટિવિટી ડિફરન્ટ મટીરિયલ માટે ડિફરન્ટ હોઈ શકે સૌથી સારીમાં સારી થર્મલ કંડક્ટિવિટી મીન્સ કે જેટલી હીટ પકડી લે તો એની અંદર જનરલી સિલ્વર જે છે એ જનરલી જલ્દી પકડે ત્યાર પછી કોપર છે પછી ગોલ્ડ જે છે
તો ઇઝીલી એ જે છે એ હીટ પકડી પણ લે છે અને ડિફોર્મ પણ થઈ જાય. એના સિવાય એલ્યુમિનિયમ છે, ટંગસ્ટન છે, બ્રાસ છે. આપણા ઘરે એલ્યુમિનિયમની જે છે વેસલ્સ ઘણા બધા હોય છે. તો એની અંદર આપણે જો વોટર ગરમ કરવા મૂકીએ અને સ્ટીલની જે તપેલી જે છે એની અંદર આપણે વોટર ગરમ કરવા મૂકીએ તો તમને એક્સપિરિયન્સ થઈ જશે કે કેટલા શોર્ટેસ્ટ ટાઈમની અંદર જે છે એ હીટ જે છે ટ્રાન્સફર થતી હોય છે અને જે અંદરનું કન્ટેન્ટ છે એને જે છે ગરમ કરી દે છે. તો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી ઓફ thermal conductivity. Then after the next thermal property is specific heat. It is quantity of heat in joule required to increase temperature 1 Kelvin of 1 kg of material. કોઈ પણ મટીરિયલ જે છે એની માટે 1 જૂલ જેટલું જે છે ટેમ્પરેચર આપતા એની અંદર 1 કેલ્વિન અથવા 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું એની અંદર ચેન્જીસ આવે તો એને સ્પેસિફિક હીટ તરીકે ડિફાઇન કરવામાં આવે છે. તો સ્પેસિફિક હીટ જે છે એની માટેનું કોન્સ્ટન્ટ જે છે એ જનરલી C તરીકે ડિફાઇન કરેલો હોય છે અને એમ જે છે કે માસ કે અહીંયા કેટલું વોલ્યુમ જે છે મીન્સ કે કયું માસ આપણે મટીરિયલ જે છે આપણે અંદર લઈએ છીએ. બીજું છે કે કેટલી એનર્જી એ આપણે સપ્લાય કરીએ છીએ અને ટેમ્પરેચર ઓફ ડિફરન્ટ મટીરિયલ દરેક મટીરિયલના ટેમ્પરેચર છે અલગ અલગ. ઇટ મીન્સ કે દરેક મટીરિયલની સ્પેસિફિક હીટ પણ જે છે એ અલગ અલગ રહેશે. Then after the next thermal property is thermal expansion. So it is increase in dimension of material on application of heat. કોઈ મટીરિયલને જે છે આપણે હીટ સપ્લાય કરીએ એને કારણે આઈધર એ કોન્ટ્રેક્શન ઓર એક્સપાન્શન ટેક પ્લેસ કરશે. So here the increasing dimension of material on application of heat, due to that the alpha is coefficient of thermal expansion and dE here E is a strain symbol and L is length of the material and dl means a change in the length or either contraction or expansion and the T is the temperature of the material. So this is one of the example of thermal expansion where the material is shrink or expand. Then after the next thermal property is thermal fatigue. It is mechanical effect of repeated thermal stresses on solids by repeated heating and cooling. So thermal fatigue example is like in our forging shop or you can experience that कि there is a one rod जो आप फर्नेस में इसको हीट सप्लाई करते हो उसके बाद एनविल पर जाके उसके ऊपर स्ट्राइक करते हो और फिर ठंडा हो जाता है फिर से आप हीट करते हो और उसके बाद जो है उस पर स्ट्राइक करते हो. फॉर एग्जांपल जो लोहार जो बोलते हैं जो काफी सारे आयन के जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो कंपलसरी जो हीट करता है उसके बाद कंपोनेंट के ऊपर हैमर से स्ट्राइक करता है तो उस प्रकार से वो फॉर्मिंग होता है. तो उसमें एक दिक्कत आ सकती है या उसकी मटेरियल में जो दिक्कत आती है कि उसके ऊपर स्केलिंग इफेक्ट यानी ऊपर की जो अपर सरफेस है वहां पे क्रैक जो है या ऐसी लेयर जो है वो जनरेट होने के चांसेस है. तो वो ड्यू टू दी थर्मल फटिग मीन्स कि रिपीटेडली द मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम means heating and cooling condition. Due to that this thermal fatigue effect is there. Then after the next thermal property is melting point. It is temperature at which material start to convert from solid to liquid. जो मेल्टिंग पॉइंट जो है पैरामीटर फॉर थर्मल प्रॉपर्टी जो है वो हमको कास्टिंग के लिए काफी जरूरी है कि कास्टिंग में जो भी मटेरियल हमने पैटर्न सिलेक्ट कर लिया उस पैटर्न के मुताबिक अगर हम मटेरियल को अंदर पोर करना चाहते हैं तो वो मेटल इजीली जो कन्वर्ट हो सके फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म में तो उस प्रकार के मेटल का सिलेक्शन करना चाहिए. हर एक मटेरियल की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग होगी. Okay, so the thermal property of melting point is mainly focusing on the casting area. Then after the next thermal property is thermal diffusivity. So thermal diffusivity means the rate at which disturbance in temperature of one part travel to another part. यानी कि कोई ऐसे मटेरियल है कि उसमें अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो एक एटम से दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल टू दूसरे मॉलिक्यूल्स में जब हीट ट्रांसफर होती है उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट में हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रही. उसका रीजन ये है कि जो बेसिकली जो एटम्स है वो हीट जो है एग्जैक्टली मटेरियल टू मटेरियल डिफर रहेगी. तो यहाँ पे जो मटेरियल टू मटेरियल जो डिफर रहेगी उसकी
मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे घर पे एक वेसल होते हैं, उसमें ब्लैक कलर का या कुछ ऐसे हैंडल होते हैं डिफरेंट कलर के। अगर हम उस वेसल को बर्नर पे गर्म करते, और अगर उसको उठाना है बर्नर पे से, तो काफी हीटेड होगा, लेकिन अगर वो हैंडल को हम ऐसे ग्रिप करते हैं तो हमको इतना हीट जो है वो महसूस नहीं होता। तो दिस इज द थर्मल डिफ्यूसिटी, मीन्स कि द टेम्परेचर जो स्टील की जो वेसल है उसमें काफी ज्यादा है, लेकिन जो इंसुलेटिंग टाइप का जो मटेरियल है उसमें काफी कम है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, मीन्स देयर इज सम डिस्टर्बेंस, तो उसके वजह से हीट जो है इतनी हमको वो नहीं लगती। तो दिस इज वन ऑफ दी थर्मल डिफ्यूसिविटी टर्म। देन आफ्टर द नेक्स्ट इज spelling. The it is cracking of brittle material caused by thermal stresses in the surface layer. स्पेलिंग जो है वो बेसिकली ब्रिटल मटेरियल पे काफी दफा देखा जाता है, और चांसेस है कि उसकी वजह से वो टोटली स्क्रैप या क्रैक पूरा होने क्रैक ही हो जाता है, यानी टोटली वो स्क्रैप में चला जाता है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि हमारे घर में अगर एक ऑर्डिनरी सेंट्रल टिपो है, और उसके ऊपर हम कुछ एकदम गर्म से कुकर जो गर्म हुआ है, तो वो सीधा वहां से लेके हम वो सेंट्रल टेबल है उस पे हम रख देते हैं, तो वो जो अगर ग्लास का यानी ब्रिटल मटेरियल है तो उसके ऊपर हम रख देंगे, तो चांसेस है कि वो सेंट्रल टेबल जो है उसके ऊपर जो है क्रैक जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपरली स्पेलिंग इफेक्ट जो है वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से यानी स्पेलिंग स्पेलिंग की जो कैपेसिटी है वो काफी कम है। उसके बजाय पे हम वही इस प्रकार के ही ग्लास आते हैं, वो अगर हम डाइनिंग टेबल के ग्लास जो बोलते हैं उसके ऊपर अगर हम इस प्रकार से कुकर, अगर ओवरफीड कुकर है वो रख देते, फिर भी उसके ऊपर जो क्रैक जो है वो नहीं आती, क्योंकि उसकी जो स्पेलिंग रजिस्ट करने की कैपेसिटी वो ज्यादा है। यानी कि मटेरियल तो ब्रिटल ही है, वो अगर हम ग्लास दोनों ही ग्लास है, लेकिन डाइनिंग टेबल के जो ग्लास आते हैं उसकी जो है स्पेलिंग इफेक्ट काफी अच्छी रहती है, क्योंकि वहां पे जो हीटेड कंपोनेंट भी अगर हम रखते तो वो हीट जो है रेजिस्ट कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्रैक जो है सरफेस पे जनरेट नहीं होती। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ स्पेलिंग वेयर द क्रैक ऑफ ब्रीथिंग मटेरियल कॉज थर्मल स्ट्रेसेस, उसकी वजह से क्रैक जनरेट होती है, वो एक्सपांसन होती है। तो इन द सरफेस लेयर कभी कभार ऐसा भी होता है कि काफी दफा हम फोर व्हील जो फ्रंट विंडशील्ड ग्लास है उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आगे कुछ ट्रक जाती है और उसके अंदर से कुछ ऐसे स्टोन या कुछ स्ट्राइक हुआ, तो एक लाइटली स्पॉट जैसा जो है वो हमारे फ्रंट विंडशील्ड ग्लास पे अगर डिटेक्ट हो गया है। अभी हम देखते हैं कि माइनर सा वो इफेक्ट है, लेकिन काफी दफा ऐसा होता है कि जब ये समर की सीजन में अगर हम कार काफी धूप में खड़ी रखते हैं, और कार के जो डिफरेंट ग्लासेस यानी डोर पे जो डिफरेंट ग्लासेस सभी ग्लासेस हमने प्रॉपरली अगर क्लोज करके रखे, तो अंदर की जो एयर है उसकी हीट बढ़ेगी, और वो अगर हीट बढ़ती है तो चांसेस है कि वो निकलने की ट्राई करे। अभी कार तो टोटली सभी ग्लास जो है टोटली क्लोज है, डोर क्लोज होने की वजह से, तो वो जो क्रैक यानी वो जो स्पॉट विंडशील्ड पे फ्रंट ग्लास पे जो माइनर स्पॉट था उसके अंदर से हॉट गैसेस जो है वो बाहर निकलने की ट्राई करेगी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे वो जो क्रैक है वो बढ़ता जाएगा। तो काफी सारे ऐसे आप रोड पे देखोगे कि काफी सारे ऐसे जो फोर व्हील है या ट्रक है बस है उसके काफी सारे ग्लास है वो डैमेज होते हैं, यानी ऐसे क्रैक दिखते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द हॉट गैसेस it generate during the summer season, and due to that there is minor spot expanding fully. So this is the swelling effect. Then after the next is thermal property is thermal shock. It is impulse effect produced with solid due to sudden change of temperature. For example, हमारे हम सुबह में फॉर एग्जांपल चाय पीते, तो या गरम गरम दूध पीते, तो उसके अंदर जो है हम जो कप है उसके अंदर हम वो लिक्विड जो है वो हम पोर करते। अगर आप देखोगे कि उस जो कप है या जो ग्लास है उसके अंदर हम जो उसका इनिशियल टेम्परेचर वो काफी कम रहता है, लेकिन सडनली अगर हम कुछ लिक्विड अंदर डालते हैं तो सडनली कभी कभार ऐसा होता है कि उसके सरफेस पे क्रैक भी जनरेट होती है। तो ऐसा फॉर एग्जांपल आप देखोगे या सडनली चेंज जो देखोगे कि हम चाय की जो ला रही है वहां पे अगर चाय देखेंगे तो वो कांच के ग्लास में देते,
तो कभी कभार जैसे ही वो ग्लास के अंदर फिलअप करते हैं और अगर अगर हमको ग्लास वो देते तो काफी हॉट लगता है, तो उसके लिए हम दूसरा ब्लैंक यानी एम्प्टी जो ग्लास है वो हम उसके पास मांग लेते। तो हमको हीट जो है वो काफी इतने हैंड पे जो महसूस होती फिंगर पे, तो वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो सडनली जो टेम्परेचर चेंज हुआ उसकी वजह से भी काफी ऐसे मटेरियल है उसमें क्रैक जनरेट होती है। यानी कि हम जो ये कप जो है टी के कप है, तो वो इनिशियली जब आते हैं उसमें कुछ क्रैक नहीं है, लेकिन आफ्टर नंबर ऑफ यूज यू कैन सी देयर इज सम क्रैक डेवलप। तो वो जो है वो थर्मल शॉक मीन्स के सडनली हॉट मेटल जो है उसके अंदर हम पोर करते हैं, उसकी वजह से ऐसे दिक्कतें आती हैं। तो समटाइम दिस इज इन सिरामिक मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, or in porcelain material, the thermal shock effect is there. Okay, so this is thermal property. Then after the next is our electrical properties. कौन कौन सी electrical property जो है वो हम देख लेते हैं पहले। तो फर्स्टली जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जिस प्रकार से थर्मल कंडक्टिविटी थी उस प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन आफ्टर रेजिस्टिविटी, after that superconductivity, then after semiconductivity, and lastly dielectric characteristics. So these all five are electrical properties. Let's see one by one of electrical property. So first electrical property is electrical conductivity. Here the electrical conductivity means it is the property of material by virtue of which it allows the flow of electric current. It is the to movement of electric charges from one position to the other. Charges may be ion or electron. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स कि जो अगर हम करंट सप्लाई कर रहे जैसे स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिक करंट अगर सप्लाई होता है, तो वो वहां से लेके जो डेस्टिनेशन एलिमेंट है वहां तक मूवमेंट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप के आयन या इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेंगे। ओके, तो हम जैसे ही घर में स्विच ऐसे प्रेस करके ऑन करते, तो पंखा अगर स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट होता है, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है बाय यूजिंग द आयंस एंड इलेक्ट्रॉन इट ट्रांसफर्ड टू द डेस्टिनेशन स्टेशन इज फैन, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी काफी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे जो वायर जो यूज करते हैं, तो आप दो प्रकार के वायर जो है वो बेसिकली यूज करते हैं। आइदर एक जो है वो रोड टाइप वायर भी आते हैं, और दूसरे जो है स्प्लिट टाइप रोड यानी काफी ऐसे धागे जैसे वायर आते हैं। और एक जो है जो हम फ्यूज अगर घर पे उठ जाता है या कट ऑफ होता है, पावर कट हो जाता है, तो तब हम वो फ्यूज के लिए जो तार यूज करते हैं तो वो सिंगल एलिमेंट जो रॉड जो है वो आता है, और दूसरे जो है नंबर ऑफ स्प्लिट वायर जो है उसका यूज करते हैं। तो दोनों में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो जनरली प्रॉपर ही मेंटेन होती है, लेकिन जितना वायर को स्प्लिट करेंगे तो उसकी वजह से भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल हम जो ईयरफोन यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो साउंड की क्वालिटी है फॉर डिफरेंट मटेरियल इज डिफर। ओके, तो अगर आपने अब काफी सारे अभी तक भी ऐसे ईयरफोन जो यूज किए होंगे या काफी ऐसे बिगड़ भी गए होंगे या कट भी हो गए होंगे, तो अगर आप वो कट हो गए होंगे तो आप देखोगे तो उसके अंदर एक वायर दिखता है, तो वो जो वायर है वो कॉपर का वायर होता है। और जनरली जो जितने अच्छे सारे ऐसे ईयरफोन जो आते हैं उसके अंदर जो वायर जो यूज करते हैं यानी मटेरियल, तो बेसिकली कॉपर यूज करते हैं। उसका यूज इसलिए करते हैं कि उसकी साउंड या इलेक्ट्रॉन या एटम्स ट्रांसफर करने की कैपेसिटी वो काफी अच्छी है। तो इसके लिए काफी अच्छा साउंड, बेहतरीन साउंड पाने के लिए ज्यादातर जो अच्छे ईयरफोन जो आते हैं उसके अंदर कॉपर बेस जो है वो काफी प्रिफर करते हैं। इसकी वजह से साउंड की क्वालिटी जो है वो काफी बेहतर मिलती है। तो हम अगर मार्केट में जाते हैं और कहीं पे भी ऐसे रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं या कहीं पे फुटपाथ पे मिलते हैं कि कभी बार देख लेते हैं कि ईयरफोन जो है वो 40 रुपीज 50 रुपीज में मिल जाते हैं और हम परचेस कर लेते हैं, तो उसमें भी साउंड तो वैसे भी आता है, लेकिन जो ओरिजिनल साउंड की क्वालिटी जो हमको ईयर में मिलती है और वो जो हम 50 रुपीज की ईयरफोन परचेस करते हैं उसमें साउंड की जो क्वालिटी मिलती है, तो वो इतने प्रॉपर नहीं रही, यानी कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस आता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट्स होता है आयंस के साथ, तो वो काफी डिफर रहता है। उसकी वजह से कुछ जो साउंड यानी स्पीकर की जो क्वालिटी होगी वो डिफर हो जाएगी।
तो मेनली जो आयन का जो मूवमेंट है वो डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट तरीके से होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Then after next electrical property is resistivity. Means the property of material by virtue of which it resists the flow of electric current. रेजिस्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे फैन के लिए रेगुलेटर है. अभी जो पावर सप्लाई जो हमारे यहाँ पे आता है, ओके, वो होता है 240 वोल्ट. और जो हम करंट जो सप्लाई करते हैं फैन में, तो वो अगर रेगुलेटर 1 पे रखा है, 2 पे रखा है, 3 पे रखा है या 5 पे रखते हैं, तो उस प्रकार से फैन की हमको जो स्पीड जो मिलता है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो रेगुलेटर की वजह से वो जितना ज्यादा देंगे उतना जो स्पीड फैन की बढ़ेगी, अगर जितना कम देंगे तो उसकी आप जो है स्पीड कम रहेगी. ओके. उसी मिताक से हमने रेजिस्टिविटी को दूसरे टर्म में देखेगी कि जो टॉर्च आती है, तो टॉर्च के अंदर अगर हम जो शेल जो यानी पावर बैटरी अगर डालते हैं, तो जब वो फुल्ली चार्ज होती है तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी. जैसे ही वो चार्जिंग कम होता रहेगा तो इंटेंसिटी कम होती रहेगी. यानी कि रेजिस्टिविटी इज देयर कि देयर इज अ मटेरियल के अंदर जो एटम्स का मूवमेंट है वो कम हो जाता है. मूवमेंट जो धीरे धीरे कम होता है, उसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को जो है वो रेजिस्ट करता है. तो दिस इज रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी. देन आफ्टर द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सुपर कंडक्टिविटी. It is the property of material in which sudden drop in resistivity take place at superconducting transition temperature before the absolute zero. Superconductivity means कि for example हम अगर कुछ मटेरियल है, जैसे हमारे पास प्लायर होता है, इलेक्ट्रिशियन जो है हमारे घर पे कुछ अगर फॉल्ट हुआ है अगर हम बुलाते हैं, तो वो कभी कभार जो लाइन वर्किंग है उसके अंदर का जो लाइव वायर है उसको ही काट के वो ज्वाइन करता है और फिर से ऐसे टच कर देते हैं, तो दिस इज सुपर कंडक्टिव. लेकिन उसको शॉक क्यों नहीं लगता, तो कभी कभार जो है वो प्लायर की है उसके ऊपर जो ग्रिपिंग सरफेस है वो जो है सुपर कंडक्टिविटी मीन्स कि यहाँ पे जो करंट की इंटेंसिटी पकड़ के यानी जो ग्रिपिंग सरफेस है वहां तक आ जाती है, लेकिन सडनली वो ड्रॉप हो जाती है इन रेजिस्टिविटी टेक प्लेस. तो रेजिस्टिविटी कहाँ पे आ गई, जो प्लायर हम यूज करते हैं उसके जो ब्लू कलर का या ब्लैक कलर के जो ग्रिपिंग सरफेस है वहां पे जो है रेजिस्टिंग है, यानी कंडक्टिविटी मीन्स कि वहां पे इलेक्ट्रॉन या आयन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो वो ग्रिपिंग हैंड जो है उसके अंदर जो है करंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हम इजीली लाइव वायर जो है उसको भी काट सकते हैं. उसके ड्यूरिंग द लाइव वायर में भी हम ऑपरेशन या परफॉर्मेंस जो कर सकते हैं. तो वहां पे जो टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर जो राइज होने के चांसेस है वो सडनली वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो दिस इज सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं. देन आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज सेमी कंडक्टिविटी. तो यहाँ पे जो है it is the property of non-metallic material by virtue of which their electron structure allow to more valence electron to be available by thermal energy. तो सेमी कंडक्टिविटी मीन्स कि काफी सारे ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर अगर हम करंट सप्लाई करते हैं उसकी वजह से एटम जो है स्लाइटली उसको ट्रांसफर होने देते हैं और काफी सारे को वो रेजिस्ट भी करते हैं. फॉर एग्जांपल हम नॉन मेटेलिक मटेरियल में कंसिडर करेंगे तो काफी ऐसे शूज जो मार्केट में यानी वो सेफ्टी शूज बोलते हैं इंडस्ट्री में, काफी सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल बेस्ड जो कंपनी है वहां पे जो वो एक ऑपरेटर या वर्कर या लेबर्स को है जनरली सेफ्टी उस प्रकार के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफी सारे लाइव वायर जो वो वाटर के अंदर कुछ वर्क करते हैं, तो करंट जो सप्लाई रहता है उसकी वजह से उसकी बॉडी में ना लग जाए उसके लिए वो सेफ्टी शूज प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वो रेजिस्टिविटी रहते. तो वो जो मटेरियल जो जनरली यूज करते हैं वो प्लास्टिक और कंबाइंड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल जो यूज करते हैं स्पेसिफिक. अब तो काफी सारा डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन बेसिकली वो नॉन मेटालिक टाइप मटेरियल है, तो उसको यूज करते हैं जिसकी वजह से वो जो है वो कंडक्टिविटी मीन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होते हीट जनरेट होने के चांसेस है तो वो काफी कम हो जाते हैं. कभी कभार ये स्विचेस जो है हमारे यहाँ पे एमसीबी स्विचेस जो बोलते हैं, पहले हम फ्यूज यूज करते हैं काफी दफा, अब जो है एमसीबी स्विचेस आ गई. तो एमसीबी स्विचेस जो है बेसिकली वो रिप्लेस करती है फ्यूज को. तो जब ओवर हीटिंग हो जाती थी घर पे, कुछ लोड ज्यादा बढ़ जाता, फॉर एग्जांपल हमने बोरवेल स्टार्ट कर दिया या फिर वॉशिंग मशीन सडनली स्टार्ट कर दिया या एसी स्टार्ट कर दिया, उसकी वजह से जो फ्यूज है उसके जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है.
ओके, तो उसकी जगह पे अभी क्या हो गया, एमसीबी आ गया, यानी वो वायर वो मेल्ट होता है तो वो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि एमसीबी जो है वो ओवरलोडिंग कंडीशन होने की वजह से वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी पावर जस्ट कट हो जाता है। फिर से अगर हम उसको ऊपर करेंगे तो वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे ओवरलोडिंग होगा तो वो ड्रॉप डाउन होगी। तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, जिसकी वजह से हीट से वो मेटल का जो रॉड था वो पहले मेल्ट होता था, वो मेल्ट नहीं होता, लेकिन वो पार्शियली डाउन हो जाता है, और वो सेमीकंडक्टिव मटेरियल यानी ब्लू कलर का उसके ऊपर वो ग्रिपिंग रहता है, जिसकी वजह से हम एमसीबी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो दिस इज सेमीकंडक्टिविटी एग्जांपल। The next electrical property is dielectric characteristics. So dielectric is a material separating two charges body. It is insulating the material. Dielectric यानी कि हमारे पास जो बैटरी के सेल्स आते थे पहले, जो है पैनासोनिक के आते हैं, नोविनो के बैटरीज के आते हैं, अभी भी हम टीवी के रिमोट्स में या वॉल क्लॉक है उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स आते हैं, और काफी दफा हम देखेंगे कि हमारी जो वॉचेस है उसके अंदर भी बटन टाइप के जो है वो सेल्स जो मिलते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सेल्स है उसके अंदर जो ग्रेफाइट और दूसरे के एलिमेंट्स जो डालते हैं उसकी वजह से जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो मेंटेन करते हैं। तो वो हो गया डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मटेरियल जो है कंटिन्यूसली एक सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वो जनरेट करते रहता है। जैसे ही उसकी मेटल की फ्लो कम हो जाती है उसके बाद हमको वो शेल जो है वो रिप्लेस कर देना पड़ता है। So this is dielectric characteristics of the material. So till now we have discussed about the thermal property and electrical property, and the next is chemical property. तो chemical property जो है उसमें दो तरह की chemical property है। फर्स्ट इज फ्लेमेबिलिटी एंड सेकंड इज कोरोजन। तो फ्लेमेबिलिटी और कोरोजन दो ही प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी में हम कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी मीन्स कि अ मटेरियल दैट गेट बर्न, ओके, इज डिस्क्राइब एज अ फ्लेमेबल। जो भी मटेरियल है वो अगर फायर लगने से वो बर्न हो जाता है तो उसको हम फ्लेमेबल मटेरियल बोल सकते हैं। तो इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन। बेसिकली अगर बर्निंग इफेक्ट चाहिए या फ्लेमेबल यानी आग लगने के लिए सबसे जरूरी है कि ऑक्सीजन। तो वो जो है इसीलिए एटमोस्फेयर यानी एयर में से उसको मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मटेरियल जो है अगर फ्लेम यानी प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता है तो उसकी वजह से जो वो आग जो लगती है, तो मटेरियल जनरली ऐसे यानी जो राख जो है वो डेवलप करता है या स्मोक यानी जो धुआं जो है वो करता है, या कभी कभार वो वाटर में से स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्लेमेबल मीन्स की यहाँ पे बर्निंग इफेक्ट अगर कुछ आता है तो उसको केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। काफी सारे ऐसे केमिकल मटेरियल्स भी है कि जैसे स्प्रे हम जो डिओड्रेंट यूज करते हैं तो उसका आता है। दूसरा जो चीज है कि हम हेलो काफी सारे ऐसे मटेरियल है कि जिसका अगर हम बरतते हैं तो उस पर देखते हैं कि कुछ स्प्रे करते हैं और मोमबत्ती की वजह से आग ले जाते हैं, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, तो यहाँ पे जो बर्निंग इफेक्ट जनरेट करते हैं तो कुछ केमिकल है, तो वो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। काफी सारे ऐसे मटेरियल जो है कि जिसका सरफेस अगर एटमोस्फियर कंडीशन में रहेगा तो अभी उसकी लेयर जो है उस पे बर्निंग इफेक्ट आती है। कुछ स्प्रेइंग करते हैं, कुछ मटेरियल है उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए, एटमॉस्फेयर इफेक्ट से बचाने के लिए। तो वो स्प्रे जो है उस पे अगर कुछ ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लेयर जो है वो बर्न हो सकता है। तो दिस इज वन फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज फ्लेमेबिलिटी, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज कोरोजन। तो कोरोजन मीन्स कि कोरोजन इज अ प्रोसेस is electrochemical in nature and it is deteriorated the material. So corrosion involves two chemical reaction and oxidation. So first is oxidation takes place and another one is reduction. So it's the process of stripping electron from an atom, and reduction occur when the electron is added to atom.
तो कोरोजन जो है काफी हमने मेटल के जो एटम्स या मेटल के काफी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है उस पे हमने देखा है कि जो पार्ट्स है उस पे कोरोजन लग जाता है। ओके, तो बेसिकली जो लगने के चांसेस जो है क्यों है और किस प्रकार से कोरोजन कोई भी मेटेरियल हो तो उस पे लगता है, तो उसमें मेनली टू केमिकल रिएक्शन है, वो एक जो है ऑक्सीडेशन और सेकेंड वन है वो रिडक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन जो है वो बेसिकली स्ट्रिपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ऑक्सीडेशन जो है वो मेटल की जो सरफेस है उसके ऊपर से वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में के अंदर रिएक्शन करके वो निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन मीन्स अगर व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू कोई मटेरियल के अंदर दूसरे एटम इंसर्ट होते हैं, उसकी वजह से वो रिडक्शन होता है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंट कोरोजन। तो कोरोजन जो है बेसिकली जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो टेक प्लेस करते हैं एट एनोड, एंड द एनोड इज पॉजिटिव चार्ज। जनरली एनोड जो है हम पॉजिटिव चार्ज पे जनरली कन्वे करते हैं, और एटम लीव टू द सॉलिड सरफेस एंड एंटर इनटू इलेक्ट्रोलाइट्स एज अ आयन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यानी कुछ एटमॉस्फेयर या कुछ लिक्विड या कुछ गैसेस जो है उसके पे इफेक्ट हो सकती है। द आयन लीव देयर कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव चार्ज in the form of electron in the metal which travel to cathode through conductive path। इसके लिए बेसिक एक सर्किट जो है बनना जरूरी है, तब जाके वो ऑक्सीडेशन या रिएक्शन प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो बेसिकली जो कंडक्टिव पाथ जो है वो जनरेट होना जरूरी है। एट द कैथोड द कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस एंड कंज्यूम द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडेशन में से होके जो एनोड पे से जो एटम्स आते हैं वो कुछ इलेक्ट्रिव मटेरियल है या कंडक्टिव मटेरियल है या फिर कुछ गैसेस है, उसकी वजह से वो रिएक्शन टेक प्लेस करते हैं, वो सरफेस पे आके वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेटल की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, और after some duration it will start the reduction। So there is a two difference between oxidation and reduction। So here the कोरोजन के लिए सबसे एसेंशियल कंपोनेंट जो है कि कोरोजन टेक प्लेस कर सकता है, तो फर्स्ट इज एनोड के जहां पे हमने कनेक्ट किया है, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोलाइट विथ ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। ओके, तो जो बेसिकली एक कंडक्टिव सर्किट बनाता है एंड सम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। जो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है उसकी वजह से वो हम ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं मेजोरिटी जो हमको अगर है कि कोई भी मेटल का जो रॉड है वो है, अगर हम एटमोस्फेयर में रखते हैं तो वहां पे बेसिकली एयर अवेलेबल है। सो एयर इज द मोस्ट कॉमन एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट विद ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज। ओके, एंड अलोंग विथ नेचुरल वाटर, वाटर में अगर हम रखते हैं तो भी जो है चांसेस है कि वो हमारा मेटल जो है वो कोरोजन जो है टेक प्लेस कर सकता है। और सच ऐसे सी वाटर जो हम शीप जो दिखते हैं, तो वो शीप जो काफी कंटिन्यूस जो है वो सी वाटर में रहती है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोरोजन नहीं लगता, लेकिन अगर काफी दफा रहने के बाद जो है उसकी कोरोजन की इफेक्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको स्क्रैप कर देते हैं। ओके, सो दिस इज कोरोजन इफेक्ट। और उसके लिए ये जो चार है एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज एयर हियर for in our environment and the some direct electric connection between anode and cathode, जो एयर की वजह से या वाटर की वजह से ये एनोड और कैथोड को वो जोड़ देती है, तो ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो हियर द एनोड इज एक सिंपल इक्वेशन जो बनाया है कि एनोड जो है उसमें एम जो है वो मेटल का एटम्स है, और एम प्लस यानी कोरोजन की इफेक्ट जो है स्टार्ट होती है, उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड के पास आते हैं, और कैथोड के पास आते हैं तो वो 2H मीन्स की कैथोडिक रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करता है, और उसकी वजह से वो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, सो दिस इज वन ऑफ द जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट हो गए बाय इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे जो एयर जो है उसकी वजह से, और वो मटेरियल के अंदर वो रिडक्शन जो स्टार्ट होगा तो वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके वो रिएक्ट करेंगे। तो दिस इज दी कोरोजन प्रोसेस, और इसके लिए मेजर ये 4 जो कंपोनेंट है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कोरोजन के अंदर। देन आफ्टर दी टाइप्स ऑफ कोरोजन देख लेते। तो कॉन्टेक्ट टाइप कोरोजन आता है, देन आफ्टर माइक्रो कोरोजन आता है, थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन कोरोजन, फोर्थ इज ट्रेस कोरोजन, एंड फिफ्थ इज ग्रेन बाउंड्री कोरोजन। तो ये जो 5 जो है वो डिफरेंट टाइप की कोरोजन है। ओके,
So let's see one by one. Contact corrosion. First one. So it causes by metallic contact of two or more metal possessing different electrochemical potential. वो कहाँ पे होता है वो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक एल्यूमिनियम की प्लेट है और एल्यूमिनियम की प्लेट के अंदर हमने ये बोल्ट ब्रास के जो बोल्ट है वो रखा है। अभी जो ऐसे हम कहाँ पे देखेंगे तो हमारे जो सिटी बस सर्विस है या बस सर्विस है उसका जो फैब्रिकेशन है या फ्लोर बनाते हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लोर है तो इस प्रकार की इमेज है और उसके ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम की शीट्स होती है। उसके अंदर जहाँ पे उसको ग्रिपिंग करना है चेसिस के ऊपर तो वहां पे हम बोल्ट और यहाँ पे वॉशर भी यूज करते हैं। तो उसकी वजह से हम प्रॉपरली माउंट करते हैं यानी ग्रिपिंग सरफेस प्रोवाइड करते हैं। अब जब रेनी सीजन आती है या कुछ वाटर ड्रॉप डाउन होता है तो उसकी वजह से ये आयरन के जो बोल्ट हो गए या ब्रश तो उसमें कोरोजन लगेगा। तो वो कोरोजन की इफेक्ट जो एल्यूमिनियम की अपर सरफेस है वहां पे भी हमको दिखेगी। तो दिस इज कोरेट जोन दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट कोरोजन बिकॉज दिस एल्यूमिनियम के ऊपर इतना रस्ट जो है वो जल्दी नहीं लगता है। और दूसरा चीज है कि यहाँ पे दो मेटल का हमने यूज किया है। ये मटेरियल अलग है बोल्ट का और ये जो बेस मटेरियल है वो एल्यूमिनियम। तो द मेटालिक कॉन्टेक्ट ऑफ टू और मोर मेटल पोजेसिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो यहाँ से अभी आ सकता है और ये कोरोजन के इफेक्ट की वजह से एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर जनरेट होगा। तो उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी थिकनेस है स्लाइड आफ्टर सम टाइम सब रिडक्शन होगी। तो उसकी वजह से काफी सारे ऐसे सिटी बस के उसके अंदर देखोगे तो क्रैक जनरेट हो जाती है बॉटम सरफेस। हमको लगता है कि ये किस तरह से ऐसे होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन इज कॉल्ड एज अ कॉन्टेक्ट कोरोजन टाइप। देन आफ्टर द सेकंड कोरोजन इज माइक्रो कोरोजन। जो बेसिकली माइक्रो कोरोजन है वो बहुत माइनर और काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद वो ऑब्जर्व होता है। जनरली हम इसका कुछ एग्जांपल तो ऐसे नहीं दे सकते। इन जनरली वो कॉन्टेक्ट कोरोजन टाइप है उसके सिमिलर ही हम कंसीडर कर सकते हैं। So it is caused by alloy containing several phases with different electrochemical potential with respect to each other. जनरली जो माइक्रो कोरोजन है फॉर एग्जांपल हम कुछ केमिकल लेके जाते हैं वो ट्रक है उसका जो कंटेनर है उसके अंदर कुछ केमिकल है उसकी वजह से भी हो सकता है। वो सडनली नहीं होता लेकिन काफी सालों के बाद जो है वो टैंक जो है वो डैमेज हो जाएगी और जो है रिएक्शन टेक प्लेस करेगा तो उसके बाद उसमें ब्लो होल्स या कुछ होल्स जो है जनरेट होते हैं। तो वो जो एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो है वो माइक्रो कोरोजन के अंदर आता है। देन आफ्टर द थर्ड टाइप कोरोजन इज concentration corrosion. So this is concentration corrosion means कि causes when the metal is suspended by electrolyte. यहाँ पे एयर भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट ऐसे वर्क कर सकता है विथ नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन। यानी प्रॉपरली वो जो कंपोजिशन है वो यानी एकदम प्योरली या प्योरली एक ही मटेरियल का या डिफरेंट मटेरियल का कंपोजिशन इलेक्ट्रोलाइट भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ये कॉपर के जो ये रॉड है और कॉपर के डाइल्यूट करके हमने यहाँ पे रखा है। जो ए जो है वो कैथोड की तरह कंसीडर किया है और बी जो है वो एनोड कंसीडर किया है। तो यहाँ पे एक जो लिक्विड जो है उसकी वजह से कंटिन्यूस अगर हमको ये फ्लूइड को हम कंटिन्यूस रोटेशन कराते रहते तो उसकी वजह से ये जो एनोड सरफेस है वहां यहाँ से ये जो प्लस यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव होंगे। ओके और ये जो लिक्विड है उसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ए पर जो हमने कैथोड या मटेरियल जो रखा है उसके ऊपर जाके वो स्टिक हो गए तो यहाँ पे वो रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है वो लिक्विड या फ्लूइड है उसको कंटिन्यूस रोटेशन में रख के यानी इलेक्ट्रोलाइट को जो है कंटिन्यूस मूवमेंट देता है जिसकी वजह से जो काफी टाइम के बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोरोजन का इफेक्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन कोरोजन। देन आफ्टर द नेक्स्ट कोरोजन इज स्ट्रेस कोरोजन। जनरली स्ट्रेस कोरोजन यानी कि काफी सारे ऐसे मेटल है जहाँ पे हम मैकेनिकली कुछ वर्क करते हैं लाइक हैमरिंग का स्ट्रोक करते हैं यानी डिफरेंट पॉइंट पे से हम उसको इधर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं या कॉम्प्रेशन फोर्स लगाते हैं या उसकी वजह से कुछ बैंड करते हैं। तो उसकी वजह से कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेटल की सीट है और रोड है
तो उसको हम ये ओरिजिनल लेंथ है, लेकिन यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहाँ से हमने इसको बैंड किया है। अगर हम इसको बैंड करते हैं तो जो एक्सट्रीम एंड जो है यानी वो कैथोड बन जाएगी, और ये क्या जिस पॉइंट से हमने बैंड करना शुरुआत किया है वो एज ए कंसिडर एज ए एनोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलरली अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी बेंडिंग अगर के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे उसकी वजह से ये पॉइंट पे कुछ डिफेक्ट होगा, यानी शायद वो स्पॉट जनरेट करता है या कुछ क्रैक जो है वो जनरेट करता है, उसकी वजह से कोरोजन जो है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो लाइन स्पार्क दिखा दे वो जो है वो स्ट्रेस कोरोजन, यानी कि या ड्यूरिंग दी बेंडिंग स्टेशन या टेंशन करते हैं हम इसको खींचते हैं, तो कुछ इस तरह से स्ट्रेस जो है पर्टिकुलर पॉइंट पे मटेरियल पे डेवलप होता है। तो इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस कोरोजन। तो उसकी वजह से मटेरियल का क्रॉस सेक्शन है वो कम होता है, और वो कम होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस पावर जो है वो डाउन हो जाए। वहां पे जो है एटमोस्फेरिक इलेक्ट्रोलाइट यानी एयर जो है या वाटर जो है उसकी इफेक्ट होने की वजह से कोरोजन जो है वो स्टार्ट होता है। तो काफी दफा हमने देखा है कि हमारे घर पे कुछ फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है या टेरेस पे जाने के लिए कुछ सीढ़ी है, तो वहां पे हमने बेंडिंग किया है कुछ रॉड को, तो जनरली चांसेस जो है कोरोजन के लग सकते हैं, वो पर्टिकुलरली वो बेंडिंग जो रॉड हमने किया या शीट को किया है या कुछ स्ट्रिप जो है उसको हमने बेंड किया, तो वहां पे चांसेस है कि कोरोजन जो है वो लग सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेस कोरोजन। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेस कोरोजन के बाद ग्रेन बाउंड्री कोरोजन। तो ग्रेन बाउंड्री कोरोजन मीन्स कि यहाँ पे जो कोई भी मेटल है उसके अंदर आप देखोगे कि जो आउटर लेयर है उस पे सबसे ज्यादा कोरोजन लगने के चांसेस है। यानी कि अंदर के जो कोर एरिया जो है, ये जो व्हाइट दिख रहा है ये कोर एरिया है जो ग्रेन सेंटर या कैथोडिक बिहेव करेगी अगर, और ये आउटर सरफेस है वो एनोडिक की। तो बेसिकली एनोडिक मीन्स कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ओके, और आउटर लेयर जो है उसको पहले कोरोजन लगेगा। सेंटर यानी जो कैथोडिक रीजन जो हम बोलते हैं, तो वहां पे जो कोरोजन अंदर इनर सरफेस से नहीं लगेगा, जनरली आउटर सरफेस से वो स्टार्ट होगा। तो ग्रेन बाउंड्री कोरोजन मीन्स कि आउटर सरफेस जो है वहां से जो कोरोजन स्टार्ट होगा, और वो इट ट्रैवल, यहाँ पे इसकी थिकनेस कम है, धीरे धीरे वो इस तरह से बढ़ती रहती है, और जो अंदर के जो रीजन है उसको भी वो एनोडिक रीजन जो जो है वो बनाता जाएगा। So grain boundary corrosion means कि it causes by alloy by the perception product at the grain boundary which causes different electrochemical potential। तो धीरे धीरे ये पूरा जो मटेरियल है उसके कोर एरिया तक वो जो है ये एनोड रिएक्शन है वो टेक प्लेस करेगा। ओके, सो दिस इज ग्रेन बाउंड्री कोरोजन।